So very good morning all the participants on this Sunday morning. So we'll be discussing the provisions relating to liquidation, and then we'll try to solve some case studies also depending upon the time constraint. So just a minute. I hope my screen is visible. So up to which section we had covered? Section 35 कितना कवर कर लिया था हमने? 36 भी कवर कर लिया था ना? सर 36 लिक्विडेशन स्टेट था ना? सर और 37 देसाई जी कौन सा सेक्शन है? भाई देखो बुक वगैरह रख लिया करो अपने पास, सही रहता है। या तो बुक हो या लैपटॉप हो जिस पर आप कर रहे हो। एक मिनट, चला गया। जस्ट मिनट। Sorry, sir, I was not in the last class. Okay, no issues. So we had discussed some of the provisions regarding liquidation process. So now we'll continue with the liquidation process, and then we'll try to solve some of the case studies also. So in liquidation process, we had, I think, completed up to section 36. So now 37, let us see. 36 we have covered. And this is section 37. 37 also we had covered. है ना? 37 भी हमने cover कर लिया था. Which says that the liquidator may access information from various sources. And in case he is not able to get the information, then the recourse available is he has to apply to the adjudicating authority. But before that, he has to exhaust his efforts and he has to document them also that, okay, he had requisitioned this information which he did not get. Okay. Now section 38. Section 38 talks of the consolidation of claims. section 38 liquidation. So here, section 38, consolidation of claims. The liquidator shall receive or collect the claims of creditors within a period of 30 days. So 30 days is the time period for receiving the claims, and then a financial creditor may submit a claim to the liquidator by providing a record of such claim with an information utility. Take it. Suppose the information is not recorded with the information utility, then he can provide information from other sources like loan agreement, etc., etc. Similarly, in case of financial operational creditors, there could be a case where a creditor is partly a financial creditor and partly an operational creditor. There is a provision to vary or withdraw the claim also within 14 days of its submission. Now section 39. Section 39 talks of the verification of claims. So here, unlike CIRP, where the IRP or RP doesn't have the power to reject the claims, but here the liquidator is acting in a fiduciary capacity, in an adjudicatory capacity. So he can reject the claims also, and against which then appeal can be filed to the NCLT within 14 days of the receipt of such decision. In case he rejects, then definitely he has to record the reasons in writing. They can ask it in reverse way also. Suppose he accepts the claim, so then also he has to record the reasons. The answer is no. So the liquidator shall communicate, but the onus is to communicate. The liquidator shall communicate his decision of admission or rejection. So in both cases, he has to communicate his decision to the claimant and corporate data within 7 days of such admission or rejection of such claims. So if they ask you a question, a creditor has admitted a claim, whether he is required to intimate the creditor, the answer is yes. Time period is 7 days of such admission or rejection. Whenever you are reading any section, try to form
try to frame the questions on that section, that what type of questions they may ask. They may ask two types of questions. One, what is written in that section, and second is what is not written in that section. Section 41, determination of valuation of claims. So this section is something similar to CIRP sections, where in case of foreign currency claims, unliquidated claims, so the procedure is same. Now 42 talks of appeal against the decision of liquidator. A creditor may appeal to the adjudicating authority against the decision of the liquidator, accepting or rejecting the claim. Not only in case of rejection, but in case of accepting also, creditor may appeal. The reasons could be many. The reason could be he filed a claim for 10 crores, but it was accepted for 8 crores. Second is there were two rival claimants and the claim of one claimant was admitted while the claim of other person was rejected. In case of house building project, in case of building projects, suppose two persons, two home buyers have been allotted the same flat number. Now, the liquidator has accepted the claim of one person, but he has rejected the claim of another person. If you were the liquidator, what you will do? Whether you will accept both the claims, or you will accept only one claim, or you will go to the COC or stakeholders consultation committee, what you will do in such a situation? Situation, I think you have understood. There are two claims filed before the liquidator. Both are in respect of the same flat number. They have produced receipts, have everything like bank statement, details of payment, then allotment letter. Both are referring to the same flat. So in such a situation, if you were the liquidator, what you will do? You have to But for a accept both single and verify, sir. flat, Anjay? You have to accept for a both and single verify, flat, sir. हाँ निशा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सिंगल फ्लैट के लिए दो क्लेम्स तो एडमिट नहीं किया जा सकता। अगर किसी बायर के साथ कोई एमओयू साइन हुआ हो कि उसको बाद में कोई दूसरा यूनिट दिया गया हो, तो जो लेटेस्ट एग्रीमेंट जिसके पास होगा उसका ही क्लेम लिया नहीं जाएगा। नहीं और नहीं नहीं दूसरा नहीं मैक्सिमम देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोडस ऑपरेंडी बाय द बिल्डर्स। एक ही फ्लैट को, एक ही प्रॉपर्टी को 10-10 को भी बेच देते हैं, दो की तो बात छोड़िए, और सभी का क्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। So you have to accept all the claims. So even 10 claimants may be there for the same flat. No, the basic question is one of dispute, sir. Right. It is not a question of dispute also. So the thing is that he has to satisfy that, okay, he has given the money. That is the only thing. Because umpires are financial creditors. The question of dispute. Fraudulent transaction भी होता ना, sir. हाँ है, Fraudulent नहीं वो सब ठीक है, बट ऐसा है कि अगर उसका क्लेम प्रॉपर है, सपोज ही हैज पेड द मनी Yes, sir. टू द बिल्डर, ठीक है, Yes. फॉर द सेम फ्लैट 10 बायर्स हैव पेड द मनी, तो सभी के क्लेम एक्सेप्ट करना है। हियर द क्वेश्चन इज ऑफ मनी, हियर द क्वेश्चन इज ऑफ पेमेंट और रिसीट, नॉट ऑफ द नंबर। ये नहीं कि एक हाउस नंबर पे एक ही क्लेम एडमिट होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इट्स वेरी नॉर्मल इन केस ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। जो ये फ्रॉड पार्टीज होती हैं इस टाइप से करते हैं। Another issue could be कि suppose there are some group companies, there are 4 companies in the group, ठीक है, और जो उसके पास रिसीट है वो उस कंपनी का है विच इज नॉट इनटू CIRP और लिक्विडेशन, ऐसा भी हो जाता है। सपोज वन ऑफ द कंपनीज इज इनटू लिक्विडेशन, जो वो रिसीट प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरी कंपनी की है और उस पर लिखा है वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। समटाइम्स द बिल्डर्स इन ऑर्डर टू जस्ट कमिट ए फ्रॉड, वो क्या बोलते हैं कि मान लीजिए XPS एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बना देंगे, दूसरी कंपनी बना देंगे XPS एस्टेट्स, और XPS एस्टेट्स पे क्या करेंगे, वो उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ये है कि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। बहुत सारे लोग खुशी खुशी में ज्यादा गौर भी नहीं करते रिसीट वगैरह पर इतना ज्यादा, बट बाद में एड्रेस सेम है, सब कुछ सेम है। अब बाद में जब उसने पेपर देखे, अब वो अपना क्लेम दे रहा है XPS एस्टेट्स का, लिक्विडेटर के पास क्लेम आया, लिक्विडेटर सीन भाई XPS एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड है इनटू लिक्विडेशन, तो XPS एस्टेट्स तो है नहीं, तो वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? आप बताइए क्या करेंगे एज ए लिक्विडेटर?
एक्सपीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड इज इनटू लिक्विडेशन, और जो रसीद प्रोड्यूस की है Yes, sir. होम बायर ने वो एक्सपीएस एस्टेट्स की है। Yes, sir. So what they have to do is they have to identify the addresser and probably नहीं, एड्रेस सेम है, एड्रेस दोनों में सेम है। address same है तो they have to accept, sir. नहीं, दे विल रिजेक्ट। Okay. ये एवरी एंटिटी इज सेपरेट इन इटसेल्फ। Okay. भाई इन लिक्विडेशन एस्टेट ऑल्सो व्हाट यू डू, आप क्या जो ग्रुप कंपनीज है उनके एसेट्स लाइबिलिटीज को कंसिडर करते हो? नहीं करते ना। नहीं करते। 36 में आपने पढ़ा, हाँ, correct. जो कंपनी आपकी लिक्विडेशन है कम से कम पेपर उस कंपनी के नाम में तो होने चाहिए ना। Right. Okay. इफ द होम बायर इज इग्नोरेंट देन ही हैज टू पे फॉर हिज मिस्टेक्स। अब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा The law is या also- कोर्ट में केस फाइल करेगा, दैट इज सेपरेट। बट एज अ लिक्विडेटर यू यू आर बाउंड टू रिजेक्ट सच क्लेम्स। आप क्या करोगे? Right, sir. ये सब रियल लाइफ सिचुएशंस है, ऐसे आती रहती है। Yes, sir. It's an चलिए। operational. It's an operational issue. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ पूछिए मैडम। सर एक प्रोजेक्ट है अंडर सीआईआर, ठीक है एक प्रोजेक्ट है वो सीआईआरपी में है, ठीक है। उसके होम बायर्स ने अपील लगाई हाई कोर्ट में, होम बायर्स ने अपील लगा दी हाई कोर्ट में, बट दे अपील्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। हाई कोर्ट में प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिए अपील लगाई। ठीक है तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक अनादर बिल्डर है कोई पर्सन कि वो जब तक ये सीआईआरपी में प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक बिल्डिंग का काम ना रुके, तो कोई और उसका काम कंटिन्यू कर सकता है। हाँ ऐसा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ठीक है और बिल्डिंग में काम चल रहा है। ठीक है अब प्रॉब्लम क्या आ रही है होम बायर्स के सामने कि अब जो डेवलपर दूसरा आया है वो भी पैसे लेगा और होम बायर्स उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है। और इन द मीन टाइम होम बायर्स सीआईआरपी में अपना क्लेम भी फाइल कर रहे हैं। हम्म तो अब उनके सामने ये सिचुएशन है कि जो सीआईआरपी कमेंसमेंट के बाद उन्होंने दूसरे वाले बिल्डर को पेमेंट किया है उसको वो क्लेम करें। देखिए ऐसा है, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जो नया बिल्डर आता है या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है वो कुछ एडिशनल अमाउंट क्लेम करता है। सपोज 50 लाख का आपका फ्लैट था, ठीक है। हाँ, ये 50 लाख आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। अब सपोज हाँ, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज कम, वो कहता है भाई यू गिव मी अनदर 10 lakhs बिकॉज द फ्लैट इज टू बी कंप्लीटेड। अभी तो सीआईआरपी चल ही रही है और साथ नहीं के साथ वहाँ डेवलपमेंट भी चल रहा है। नहीं, वो ठीक है, वो सही है, बट ऐसा है कि इट अमाउंट्स टू ए हेयर कट। आप इसको सोचिए कि हेयर कट है एक किस्म से। नाउ अच्छा, सपोज यू आर एग्रीव्ड अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय द हाई कोर्ट या ऑर्डर पास, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसका और तो कोई रास्ता नहीं है। या हाई कोर्ट में भी आप हायर बेंच के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैं बता रहा हूं कि इट अमाउंट्स टू ए हेयर कट एक किस्म से। भाई आपने 50 के बदले में 55 दे दिए पर फ्लैट आपको पूरा मिल गया। दूसरा टाइप का हेयर कट क्या होता है, भाई आपको मनी मिलनी है 50 के बजाय आपको 35 मिल जाएंगे, 40 मिल जाएंगे। तो ये भी वही चीज है, इनडायरेक्ट हेयर कट है एक किस्म से। तो आपके पास अच्छा। देखिए इन मीन्स एक्चुअल सिचुएशन जो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट में तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, या हाई कोर्ट की कोई हायर बेंच है, मान लो सिंगल बेंच ने दिया, सिंगल मेंबर बेंच ने दिया, तो आप डिवीजन बेंच के पास जा सकते हो। उस तरह यही ऑप्शंस है। नाउ 43 बाकी अलग से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है ना। तो इट मे नॉट बी ऑफ इंटरेस्ट टू ओके। एवरीबडी। 43 प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रेलेवेंट टाइम। नाउ ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस होती क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। क्या क्या? पहली बात कि देयर इज एन एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट और अदर लायबिलिटी। दैट मींस यू वर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। ऐसा नहीं कि पैसे देने नहीं थे, पैसे आपने देने थे। व्हाट यू हैव डन इज यू हैव ऑल्टर्ड द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट you all know is given in section 53 which is usually called waterfall mechanism। 53 में एक लाइन दे रखी है, ठीक है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, प्रसाद बांटते हो, बहुत लोग खड़े हैं वहां, लाइन लगी हुई है। आप क्या करते हो, आप उस लाइन में से एक पीछे वाले बंदे को आगे बुला लेते हो, तो यू हैव डिस्टर्ब द क्यू। ये वही है 43।
एवरीबडी इज एंटाइटल्ड वहां प्रसाद लेने के लिए, जब तक आपके पास प्रसाद है। जैसे जैसे आप लाइन में, आपका देखो आइडियल सिचुएशन क्या है, आप प्रसाद बांटते जाओ, जब खत्म हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा ही 53 बोलता है। यहां क्या है, आपने क्या किया, उस प्रायोरिटी को ऑल्टर कर दिया। मिलना सबको था, है ना। वेयर द लिक्विडेटर और द आरपी एज द केस में भी, सबसे पहले यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन, और उसके लिए आपको पता ही है कि टाइमलाइंस है 75, 115 एंड 130। ये टाइमलाइंस है आपकी CIRP और लिक्विडेशन, ठीक है। तो where the liquidator or the RP as the case may be is of the opinion that the corporate debtor has at a relevant time given a preference in such transactions and in such manner as laid down in subsection 2 to any person as referred to in subsection 4. He shall apply to the adjudicating authority for avoidance of preferential transactions and for one or more of the orders referred to in section 44. प्रेफरेंस कब दिया जाएगा, डीमिंग फिक्शन है ये, ठीक है। ए कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डीम्ड टू हैव गिवन ए प्रेफरेंस इफ देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहां डिफाइंड है, आपके सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में, है ना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में प्रॉपर्टी डिफाइंड है। पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी कुछ कुछ याद होने शुरू हो गए हैं सेक्शन, सारे तो नहीं याद हुए, लेकिन मेरे हिसाब से सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में ही होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स। प्रॉपर्टी का यहां मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना। प्रॉपर्टी में मनी भी आ जाएगी, गुड्स भी आ जाएगा, एक्शनेबल क्लेम्स, लैंड एंड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, एंड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग प्रेजेंट और फ्यूचर और वेस्टेड और कॉन्टिजेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इंसिडेंटल टू प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या एक इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया उसमें, फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर। ये वर्ड लिखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर। लॉ में जो भी चीज लिखी जाती है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच्ड टू इट। दे शुड ऑल्सो हैव रिटन टू ए क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू ए क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर, they have written for the benefit of a creditor or surety or guarantor. That means the transfer may not be directly to the creditor or surety or guarantor, but for at his instructions, as per his instructions, the transfer might be effected to somebody else, but ultimately it benefited the creditor or surety or guarantor. ठीक है, जस्ट हेलो, हाँ नीरज जी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात कर लेते हैं 1 बजे करीब। सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट देयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और श्योरिटी और ए गारंटर फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ, दोनों बातें लिखी है, फॉर भी और ऑन अकाउंट ऑफ भी। मतलब क्या होता है, कई बार सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं एक्स को, अब एक्स ना तो क्रेडिटर है, ना ही श्योरिटी है, ना गारंटर है, लेकिन क्रेडिटर श्योरिटी गारंटर कौन है, वाई है। अब वाई कहता है कि भाई एक्स को पेमेंट कर दो क्योंकि मैंने इसको पैसे देने, ऐसा हो जाता है ना। तो उसके अकाउंट पर हमने उसको पेमेंट कर दी, और क्या था, एक कोई एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेट था, ऑपरेशनल डेट या अदर लाइबिलिटी थी ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब ये कि कॉर्पोरेट डेटर की बुक्स में वो लाइबिलिटी ऑलरेडी स्टैंड करती है, चाहे वो फाइनेंशियल डेट हो, चाहे ऑपरेशनल डेट हो या अदर लाइबिलिटी, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, और दूसरा एंड द ट्रांसफर अंडर क्लॉज ए हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर इन ए बेनिफिशियल पोजीशन। इससे क्या हुआ, इसकी पोजीशन बेनिफिशियल हो गई। जैसे मैंने बताया प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई है, आपने पीछे वाले को आगे बुला लिया, भाई तुम आ जाओ, तुम पहले प्रसाद ले लो, है ना। जबकि जो पहले था उसको मिलना था, वो कहां दिया हुआ है, 53 में दिया हुआ है। प्रसाद मिलेगा कैसे, देन इट वुड हैव बीन इन द इवेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बीइंग मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53। तो आपने क्या किया, 53 का जो वाटरफॉल मैकेनिज्म था उसको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा नहीं कि पैसे देने नहीं थे, पैसे देने थे, है ना, जिसको दिए उसको भी देने थे, जो ट्रांसफर किया वो होना था, लेकिन ऑर्डर गलत, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन। और इसके अलावा एक और बात है,
कोई इंटेंशन नहीं है यहां पर, ऐसा नहीं कि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, ये फैक्ट है, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आप कह दो जी मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, तो इंटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, यहां इंटेंशन की बात कुछ नहीं लिखी, ठीक है। ये फैक्ट है, आपने ट्रांसफर, एक्चुअल ट्रांसफर कर दिया या इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 ए प्रेफरेंस शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रांसफर्स। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? ट्रांसफर्स मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा और द ट्रांसफरी। अगर कोई भी आपने जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और ट्रांसफर किया है तो वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज को पेमेंट हो रही है, करंट ड्यूज दे रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे एनी ट्रांसफर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द एक्सटेंट दैट, पहला, सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू। अब इससे आपको कुछ नया वैल्यू मिल गया, ठीक है। जैसे वी हैव हर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंस। अब इंटरिम फाइनेंस जब हम देते हैं ड्यूरिंग सीआईआरपी या ड्यूरिंग लिक्विडेशन, तो हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ना। वो बोलता है भाई पहले ही तुम्हारी कंपनी डूबी हुई है, मुझे तो कुछ एश्योरेंस दे दो ना, मेरे फेवर में कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। वो बात कहां लिखी गई है आपकी? सेक्शन, सेक्शन कौन सा है? 20 है, 22 है? सेक्शन 20 होना चाहिए, सेक्शन 20 सबसेक्शन 2C क्या बोलता है? टू रेज इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड over an encumbered property of the corporate debtor without the prior consent of the creditors whose debt is secured over such encumbered property, provided that no prior consent of the creditor shall be required where the value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt। इसका मतलब क्या है कि आप डबल उसके लिए छोड़ दीजिए, बाकी पर आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब इंटरेस्ट तो क्रिएट हो सकता है ना। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज परमिटेड, लेकिन वो क्या है, उसके बदले में आपको नया अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू एंड वाज गिवन एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द साइनिंग ऑफ ए सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड वाज यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई बैकडेट में एग्रीमेंट कर लो, है ना। ये होना कब चाहिए? ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ये देना चाहिए आफ्टर द साइनिंग ऑफ ए सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट कंटेन्स ए डिस्क। और भाई आप बैकडेट में कर लोगे तो उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में तो नहीं रजिस्टर करा पाओगे ना, इसीलिए क्या कह दिया, सच ट्रांसफर वाज रजिस्टर्ड विद एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में भी रजिस्टर्ड कराना है, ताकि आप, ऐसा नहीं है कि अपने घर पे बैठ के ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर दो कि मैंने तो ये पहले ही किया हुआ था। ऑन और बिफोर 30 days आफ्टर द कॉर्पोरेट डेटर रिसीव्स पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब हमने समझ लिया, सेक्शन 3 सबसेक्शन 27। प्रॉपर्टी यहां अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी ट्रांसफर मेड इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट शेल नॉट प्रिक्लूड, क्या लिखा है? शेल नॉट प्रिक्लूड, नॉट भी है और प्रिक्लूड भी है, इसका मतलब शेल इंक्लूड सच ट्रांसफर टू बी डीम्ड एज गिविंग ऑफ प्रेफरेंस बाय द कॉर्पोरेट डेटर। चाहे कोई कोर्ट ऑर्डर हो, कोर्ट ऑर्डर में भी कोई ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हो, उसको भी पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में ला सकते हैं, ठीक है। क्यों? आप कहोगे कोर्ट का ऑर्डर है तो हम क्या करें? भाई कोर्ट का ऑर्डर है, बट कोर्ट लुक्स एट द लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट्स विच आर पुट फोर्थ इन द प्लेट, है ना। यहां पर उसके पास कंप्लीट पिक्चर है। तो अब ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इसने खुद तो डिसीजन लेना नहीं है। भाई पीयूएफई ट्रांजैक्शन आरपी या लिक्विडेटर खुद नहीं डिक्लेयर कर रहा, ये इसका तो क्या है, ओपिनियन है, और ये क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल कर देगा। बाकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जाने कि वो ऐसा भी हो सकता है कि इसने एप्लीकेशन फाइल की लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा ऐसा कोई पीयूएफए ट्रांजैक्शन है ही नहीं, जो ट्रांजैक्शन है प्रॉपर है, ठीक है। Explanation. For the purpose of subsection 3 of this section, new value means money or its worth in goods, services or new credit or released by the transferee of property previously transferred to such transferee in a transaction that is neither void nor voidable by the liquidator or the RP under this code.
including proceeds of such property, but does not include a financial debt or operational debt substituted for existing financial debt or operational debt. तो न्यू वैल्यू क्या है? आपको कुछ मिला है, चाहे गुड्स मिले हो, चाहे मनी मिली हो, सर्विसेज मिली, या नया क्रेडिट मिला, या आपकी कोई प्रीवियसली ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी थी, वो उसका रिलीज हो गया, दैट इज नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल बाय द लिक्विडेटर। ठीक है। और द रेजोल्यूशन पर्सनल अंडर दिस कोड इंक्लूडिंग प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड ए फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट सब्स्टिट्यूटेड फॉर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट। मतलब एक फाइनेंशियल डेट के बजाय दूसरा फाइनेंशियल डेट आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और प्रेफरेंस के लिए टाइम भी है। टाइम क्या है? इफ इट इज गिवन टू ए रिलेटेड पार्टी अदर देन बाय रीजन ओनली ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। तो क्योंकि एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है ना, तो रिलेटेड पार्टी के लिए 2 इयर्स का पीरियड है प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, एम्प्लॉयज में इंक्लूडेड नहीं है। और बाकी के लिए, सबके लिए अदर देन ए रिलेटेड पार्टी 1 ईयर का पीरियड है प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है। तो सेक्शन 43 क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सेक्शन 43 में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, हितेश देसाई जी। Sir, what could be the, I mean, contentious issues in Section 43, sir? What kind of questions might be asked? Regarding the questions which might be asked, there is a case law also. वो जेपी एस्टेट्स वाला, अनुज जैन वाला केस लॉ है, उस केस लॉ को भी हम डिस्कस करेंगे 43 वाले को। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है सर। सर इसमें एम्प्लॉय को कोई प्रेफरेंस दिया हुआ है तो उसका 1 साल एक साल, या एक साल, एक साल। साल? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बार कर लेते हैं पीयूएफई ट्रांजैक्शंस, फिर इस पर थोड़ा सा केस लॉ या केस स्टडीज में भी कवर कर लेंगे उसको। ठीक है। हाँ जी। 44 क्या कहता है? मैं एक इसके ऊपर ना मैंने केस स्टडीज भी कुछ बना रखी हैं, वो भी मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस वाली। देखते हैं, अगर आज टाइम मिलता है तो आज ही डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू, है ना। 44 क्या है? ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। तो 43 में तो बता दिया कि प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन 43? इंटेंशन इंपॉर्टेंट है क्या? इंटेंशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्या या नहीं? नो सर। करना पड़ता इंटेंशन है। इज नॉट इम। ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते भाई मेरी तो गुड इंटेंशन थी, मेरी तो कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, दैट लॉजिक विल नॉट होल्ड। सिर्फ आपने ट्रांसफर कर दिया और अगर वो 53 को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो आपका प्रेफरेंशियल ट्रांसफर। Because it becomes difficult to prove, sir. हाँ, तो अब इसमें आप देखिए कि सपोज ए पार्टी हैज गिवन यू गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। एक पार्टी ने आपको गुड्स जो है क्रेडिट पर दे रखे हैं। अब आप क्या कर रहे हो? आपने उन गुड्स को उसको वापस कर दिया। तो क्या ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है? केस समझ गए आप? यू हैव परचेज्ड सर्टेन गुड्स ऑन क्रेडिट, नाउ यू हैव रिटर्न्ड दोज गुड्स, बट देयर वाज नो डिफेक्ट इन द गुड्स। कुछ डिफेक्ट नहीं था उसमें। Okay. तो अब बताइए, क्या वेदर इट कैन कम अंडर द एम्बिट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन? नहीं सर। Sir, no. यस सर। द आंसर इज यस। Okay. व्हाई? Yes, sir. Because his payment priority was low as compared to financial creditors. भाई अगर आपको पेमेंट करना होता, सबको लाइन में लगाओगे, तो ये तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, इसके पीछे आएगा लाइन में। अभी आपने क्या किया? अभी आपने उसको माल वापस दे दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। उस माल के बदले में आपने क्या किया? भाई वो आप वापस ऐसे तो दोगे नहीं, आपने कहा कि भाई ठीक है, आई एम नॉट एबल टू पे यू, तो मैं क्या कहता हूं, आपको ना एक फ्लैट दे देता हूं। आपका 50 करोड़ का ड्यूज है, मैं आपको 10 फ्लैट्स दे देता हूं। सो ही हैज एग्रीड टू गिव 10 फ्लैट्स टू दैट पर्सन। तो आपने क्या किया? ऑपरेशनल क्रेडिटर को फाइनेंशियल क्रेडिटर बना दिया। तो दिस विल ऑल्सो बी ए पीयूएफई ट्रांजेक्शन। ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस, the adjudicating authority may
on an application made by the resolution professional or liquidator under subsection 1 of 43. अब वो क्या करेगा? 44 में क्या है? बेसिकली रिवर्सल है। जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की थी वो कहेगा दोबारा ट्रांसफर करो, लेकिन ये ट्रांसफर किसने किया होना चाहिए? 43 में क्या लिखा है? इफ देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर द बेनिफिट, ठीक है। और लाइबिलिटी किसकी होनी चाहिए? लाइबिलिटी होनी चाहिए ये कॉर्पोरेट डेटर की। 44 बेसिकली टॉक्स ऑफ रिवर्सल, कि जो 43 में आपने किया उसको आप यहां रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की थी उसको वापस करो। अगर प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी, उसने उसको बेच करके पैसे ले लिए, तो वो पैसे दे दो। सेकंड क्या है? रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी सो वेस्टेड, क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं। रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी सो वेस्टेड इफ इट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड और ऑफ मनी सो ट्रांसफर्ड। आपने उसको मनी दी और मनी से उसने कोई प्रॉपर्टी ले ली, वो भी ट्रांसफर करो। अगर आपने प्रॉपर्टी दी, उसने उसको बेच करके पैसा ले लिया, वो पैसा दो, ये मतलब है, ठीक है। बी का सी, रिलीज और डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। आपने क्या किया? कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ था, उसको आपने रिलीज कर दिया। वो कहता है कि रिलीज करो अगर आपने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। 44 में रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच सम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय हिम। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कह सकती है? अगर किसी आदमी को बेनिफिट हुआ है तो वो बेनिफिट वापस करे। डायरेक्टर नहीं, गारंटर हुज फाइनेंशियल डेट्स और ऑपरेशनल डेट्स ओड टू एनी पर्सन वर रिलीज और डिस्चार्ज। आपने कोई गारंटी रिलीज कर दी, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? उसको अंडर रिन्यूड ऑब्लिगेशन लगा देगा, ठीक है, अंडर सच न्यू और रिवाइव्ड फाइनेंशियल डेट्स और ऑपरेशनल डेट्स। डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट अंडर द ऑर्डर एंड सच सिक्योरिटी और चार्ज टू हैव द सेम प्रायोरिटी एज द सिक्योरिटी और चार्ज रिलीज्ड और डिस्चार्ज। आपने कोई सिक्योरिटी या चार्ज को रिलीज कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया, तो उसमें वो कह रहा है कि भाई आप सिक्योरिटी या चार्ज प्रोवाइड करो। डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सटेंट, बेसिकली क्या है? जो आपने किया उसको रिवर्स कर रहा है 44 में, इतनी सी बात है। लेकिन सपोज ही, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि इफ ए पर्सन इज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम यू इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, तो फिर वो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं होगी, ठीक। ऐसा ही कुछ यहां पर भी लिखा हुआ है। क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor or any interest derived from such interest and was acquired in good faith and for value। आप एक कॉर्पोरेट डेटर हो, कॉर्पोरेट डेटर ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बी ने क्या किया? बी ने सी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब सी ने पैसे दिए उस प्रॉपर्टी के एंड इट वाज एक्वायर्ड इन गुड फेथ, तो सी से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करा सकते, आप बी से पैसे मांग सकते हो, ठीक है। आप तो बी बी ने जब उसको प्रॉपर्टी दी तो उसके बदले में पैसे लिए होंगे, या पैसे दिए तो प्रॉपर्टी ली होगी, तो वो आप मांग सकते हो। सी के पास आप नहीं जा सकते, क्योंकि सी ने क्या किया? गुड फेथ और फॉर कंसेंट। भाई आपको तो एक ही बार चाहिए ना, सबसे थोड़ी आप ले लो। Require a person who received a benefit from the preferential transaction in good faith and for value to pay a sum to the liquidator or the resolution professional. For the purpose of this section, it is clarified. वो क्या कहता है कि अगर आपको इंटीमेशन है, क्या इंटीमेशन है? कि भाई आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है CIRP की, ठीक है, हैड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब फाइलिंग, और कमेंसमेंट ऑफ CIRP ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, या फिर रिलेटेड पार्टी हो, तो ये क्लॉज होल्ड नहीं करेगी। मतलब इन दोनों के केसेस में एक डीमिंग फिक्शन है, ठीक है। किस केस में? अगर CIRP फाइल हो गई है या कमेंस हो गई है या फिर आप रिलेटेड पार्टी हो, तो उस केस में इट विल बी डीम्ड दैट इट इज नॉट डन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। वहां पर डीमिंग फिक्शन है, वहां पर आपके ऊपर ओनस आ जाएगा, ठीक है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट वाज एक्वायर्ड और द बेनिफिट वाज रिसीव्ड अदरवाइज देन इन गुड फेथ अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। तो आपके ऊपर है, आप प्रूव करें।
A person shall be deemed to have sufficient information or opportunity to avail such information if a public announcement regarding CIRP has been made. अगर पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है. अगर पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुका है तो उस केस में आपका ये गुड फेथ वाला फंडा होल्ड नहीं करेगा. ठीक है, ये तो हमारा हो गया 43 और 44. उसके बाद अगला है 45. अब 45, 46 और 47 ये तीनों सेक्शन और 48 ये चारों सेक्शन ही अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस के हैं. ठीक है, 45 क्या बोलता है? 45 बोलता है अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस. क्या मतलब? If the liquidator or the RP, as the case may be, on an examination of the transactions of the corporate debtor, referred to in subsection 2, determines that certain transactions were made during the relevant period under 46 which were undervalued. इसने कुछ ट्रांजेक्शंस देखी, उसके बाद में इसने डिटरमिन किया कि ट्रांजेक्शंस ये अंडरवैल्यूड है, तो ही शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डिक्लेयर सच ट्रांजेक्शंस एज वॉइड एंड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर. तो ये कहेगा ये वॉइड ट्रांजेक्शंस इसको डिक्लेयर. ये वॉइड वाली कॉन्सेप्ट जो है ना ये 44 में नहीं है. 44 में क्या बोलता है? 44 में बोलता है रिवर्स करना है. ठीक है, वॉइड वर्ड वहां यूज नहीं किया गया 44 में. 45 में जो है वो वर्ड यूज किया गया वॉइड. दोनों बातें बोली, वॉइड भी डिक्लेयर करो और रिवर्स करो इफेक्ट, हालांकि मतलब सेम ही है. ए ट्रांजेक्शन शैल बी कंसिडर्ड एंड अंडरवैल्यूड वेयर द कॉर्पोरेट डेटर मेक्स ए गिफ्ट टू ए पर्सन. आपने किसी को फ्री फंड में दे दिया, ठीक है, गिफ्ट, और enters into a transaction with a person which involves the transfer of one or more assets by the corporate debtor for a consideration the value of which is significantly less than the value of the consideration provided by the corporate debtor. मतलब आपने दे दिया कि आपने खुद वो प्रॉपर्टी खरीदी थी. यहां एसेट्स की बात कर रहा है, वन और मोर एसेट्स. ठीक, आपने वो एसेट मान लीजिए 50 करोड़ का खरीदा था और आपने वो ट्रांसफर कर दिया 40 करोड़ में, तो ये अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन हो गई. सिग्निफिकेंटली लेस है. अब सिग्निफिकेंटली लेस कौन जज करेगा? हु विल जज कि भाई ये सिग्निफिकेंटली लेस है? कोई तो जज करेगा ना. Liquidator, sir, with the help of a valuer. आरपी. देखिए ऐसा है, लिक्विडेटर को कुछ नहीं करना. लिक्विडेटर को तो एप्लीकेशन लगा देनी है. लिक्विडेटर एप्लीकेशन लगा देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी समझे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसका आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा 46(2) में दिया गया है. 46(2) क्या बोलता है? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टू असेस एविडेंस रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड इन दिस सेक्शन. वैल्यू कौन बताएगा? एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी नहीं पता ना वैल्यू क्या है, Right. है ना. तो ये क्या करेगा? एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूछ लेगा और उसके हिसाब से बताएगा. एंड सच ट्रांजैक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो ये हो गया हमारा 45. 46 क्या बोलता है? रेलेवेंट पीरियड. यहां पर पीरियड आपका है 2 इयर्स रिलेटेड पार्टी और 1 ईयर है अनरिलेटेड पार्टी. ठीक, यहां पर एम्प्लॉय वाला फंडा नहीं है. प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या था? अदर देन बाय रीजन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, है ना. यहां पर वो फंडा नहीं है. यहां पर अगर रिलेटेड पार्टी है तो 2 साल है और अगर अनरिलेटेड पार्टी है तो 1 साल. ठीक, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टू असेस एविडेंस रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड इन दिस. तो 45 और 46. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे. एक कंपनी ने स्टॉक ऑप्शन दे दिया एम्प्लॉयज को, ठीक है. अब स्टॉक ऑप्शन आपको पता ही है क्या होता है. स्टॉक ऑप्शन जो है, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है बेसिकली? आप जो भी एम्प्लॉयज हैं आपके, इन ऑर्डर टू रिवार्ड देम यू, इट इज ए लिस्टेड कंपनी, द प्राइस इज लिस्टेड एट से 1000 रुपीज, आप उसको 200 रुपीज का दे देते हो. दे देते हो कि नहीं? यही स्टॉक ऑप्शन है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? यही होता ना. At a lesser, they'll give it a lesser price, sir. हाँ हाँ, Okay. ईसॉप. तो यही तो है ना ईसॉप. और क्या होता है ईसॉप? आप डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को देते हो. तो क्या ये अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन है?
द आंसर इज नो। नो सर। हाँ, क्योंकि वो ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है वो ट्रांजेक्शन, है ना। बोर्ड अप्रूवल होगा, ये जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है वो सब उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बनती है, उस हिसाब से होता है। दैट इज बेसिकली टाइप ऑफ रिवार्ड या बोनस या जो भी समझ लो उसको, है ना। रेलिवेंट पीरियड कितना है, 2 ईयर्स और 1 ईयर। क्या यहां इंटेंशन इंपॉर्टेंट है 45 या 46 में? इंटेंशन के बारे में क्या कहना है आपको? यहां पर भी इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां कहीं नहीं लिखा है कि इंटेंशन बैड है, अच्छी है, खराब है, कुछ नहीं। आपको फैक्चुअली प्रूव करना है बस। 47 क्या है? अब सपोज, Sir, one question. यस Sir, प्लीज, हाँ। sir, this period of 1 year or 2 year, is it mandatory or it's an optional? Like say, for example, any transaction with the related party within 2 years will fall under this category, right? राइट। हम्म। So in case if it is 3 years, something happens, say 1 year prior, will it be हाँ, questionable or no? no, no. Actually, whenever you file an application, it has to be filed under a particular section. So this application will not be able to be filed under this section. So Okay, we will find the answer to your question in some other section. okay, fine, sir. है ना? Now 47. 47 says application by creditor in case of undervalued transactions. अब क्या हुआ? अंडरवैल्यूड हुई है, लेकिन आरपी या लिक्विडेटर भी मिला हुआ है, या लिक्विडेटर को ही ट्रांजेक्शन हो गई, या लिक्विडेटर ने अपने ब्रदर को फ्लैट दिलवा दिया, है ना, या कोई और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो उस केस में क्या होगा? वेयर एन अंडरवैल्यूड ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस एंड द लिक्विडेटर और द आरपी एज द केस में बी हैज नॉट रिपोर्टेड इट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं किया, तो क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी may make an application to the adjudicating authority। अब यहां पर भी एक केस लॉ है हमारे सिलेबस में। वो केस लॉ क्या है? क्या कोई आउटसाइडर भी एप्लीकेशन लगा सकता है? भाई यहां लिख दिया क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर। अब कोई आदमी ऐसा है जिसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, क्या वो भी यहां एप्लीकेशन लगा सकता है? द आंसर इज नो। उस केस में क्या कहा, हाई कोर्ट का शब्द केस है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें ये कहा भाई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यू हैव गॉट नो लोकस स्टैंड इन दिस केस, है ना। तो क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर की ही एप्लीकेशन लगा सकता है। मे मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शंस वॉइड एंड रिवर्स देयर इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे कि यहां पर अंडरवैल्यूड के बारे में तो लिख दिया कि भाई अगर इसने एक्शन नहीं लिया तो क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर लगा सकता है। प्रेफरेंशियल के बारे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या लिखा 43 में? प्रेफरेंशियल में तो यही लिखा ना कि भाई आरपी या लिक्विडिटी एप्लीकेशन लगाएगा। अगर मान लो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस की एप्लीकेशन इसने नहीं लगाई तो क्या होगा? इसके बारे में अभी हमें आंसर नहीं मिला है, आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक सेक्शन को पढ़ना है ना, उस हिसाब से जब अगले सेक्शन पर जाएंगे हो सकता है हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। Where the adjudicating authority, after examination of the application made under subsection 1, is satisfied that undervalued transaction had occurred, or RP liquidator ने after having sufficient information or opportunity, उसको पता था, he had sufficient information or opportunity to avail information, did not report, तो adjudicating authority क्या पास करेगी ऑर्डर कि जो पोजीशन थी उसको रिस्टोर कर दो। ठीक है, और बोर्ड को भी कहेगी कि इस आरपीआई लिक्विडेटर के अगेंस्ट में डिसिप्लिन प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। ठीक है। नाउ 48, ऑर्डर इन केस ऑफ अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन। द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 में प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। देखिए 47 में क्या लिखा? 47 में लिखा कि अगर आरपीआई लिक्विडेटर ने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या ऑर्डर होगा, और 48 में क्या लिखा जो 45 को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, 45 में क्या था? 45 में आरपीआई लिक्विडेटर ने रिपोर्ट किया था। द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 में प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। पहला,
प्रॉपर्टी वापस कर दो, कोई सिक्योरिटी है तो वो वापस कर दो, अगर कोई बेनिफिट मिला है तो वो वापस कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करो, लेकिन जो कंसिडरेशन दे दो। मान लो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 40 करोड़ में मिल गई, तो आप 10 करोड़ दे दो, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो 48 तक क्लियर हो गया। अभी तक जितने भी सेक्शन हमने पढ़े, यहां तक कोई भी फ्रॉड की बात नहीं हो रही है। अब आ गया हमारा सेक्शन 49। Sir, सेक्शन 49 क्या बोलता है? yes. ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। व्हाट इज द इंटेंशन? अभी तक 43, 44, 45, 46, 47, 48 में देयर वाज नो मैलिशियस इंटेंट, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये ट्रांजैक्शन हुई थी, चाहे प्रेफरेंशियल हो चाहे अंडरवैल्यूड, चाहे रिपोर्ट की या नहीं की। 48 में क्या आ गया? ट्रांजैक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। एक और खास बात, 49 जब आप पढ़ते हो तो यहां पर यह नहीं लिखा कि एप्लीकेशन कौन लगा रहा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 49 में पता चलेगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने आप भी एक्शन ले सकती है। इसमें लिखा ही नहीं है कि एप्लीकेशन किसने लगानी। पहले वाले सेक्शन में लिखा है, 43 में लिख दिया आरपी लिक्विडेटर, 45 में लिख दिया आरपी लिक्विडेटर, है ना, फिर 47 में लिख दिया क्रेडिटर मेंबर पार्टनर। यहां कुछ नहीं लिखा। ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स वेयर द कॉर्पोरेट डेटार हैज एंटर्ड इनटू एन अंडर, सिर्फ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, एज रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45, एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी satisfied that such transaction was deliberately entered into by such corporate debtor। और यहां पर deliberately एंटर की गई थी for keeping assets of the corporate debtor beyond the reach of any person who is entitled to make a claim against the corporate debtor। मतलब ये कि इन्होंने कहा भाई क्लेम आएंगे, इनको पैसा देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पहले ही इधर उधर कर दो, वो ट्रांजैक्शन की। in order to adversely affect the interest of such a person in relation to the claim, कि उसका क्लेम जो है एडवर्सली इफेक्ट हो जाए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर दो आप। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल मेक एन ऑर्डर रिस्टोरिंग द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर सच ट्रांजैक्शन एज इफ द ट्रांजैक्शन हैड नॉट बीन एंटर्ड इनटू, एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर विक्टिम्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, provided that an order under this section shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor and was acquired in good faith for value and without notice of the relevant circumstances or affect any interest deriving from such an interest। इसमें एक और बात है, यहां 2 साल 1 साल कुछ नजर आ रहा है आपको? कुछ नहीं। 49 में कोई पीरियड नहीं है। अगर फ्रॉडुलेंट है तो कोई पीरियड नहीं है, अगर फ्रॉडुलेंट नहीं है तो पीरियड है, 2 साल या 1 साल। ठीक है, तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। यहां कोई पीरियड नहीं लिखा। ठीक है, shall not require a person who received a benefit from the transaction in good faith for value and without notice of the relevant circumstances to pay any sum unless he was a party to the transaction। लेकिन गुड फेथ वाला वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सेक्शन 50। सेक्शन 50 बोलता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये एक्सटॉर्शनेट क्या है? और 50 पुराने वाले सेक्शन से बिल्कुल ओपोजिट है, क्योंकि वहां पर क्या कर रहे हो आप? वहां प्रॉपर्टी दे रहे हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। यहां क्या हो रहा है? यहां आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन ए पार्टी टू एन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द रिसिप्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट। आपको क्या मिला? फाइनेंशियल डेट मिल गया या ऑपरेशनल डेट मिल गया ड्यूरिंग द पीरियड विद इन 2 years प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 2 year 1 year नहीं है, यहां क्या है? 2 years का ही पीरियड है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। यहां ऐसा नहीं है कि रिलेटेड पार्टी है तो 1 साल है, 2 साल है, अनरिलेटेड है तो 1 साल ना, सबके लिए 2 साल। ठीक है, द लिक्विडेटर और द आरपी द केस में भी may make an application for avoidance of such transaction to the adjudicating authority if the terms of such transaction required exorbitant payments to be made by the corporate debtor। भाई आपकी कंपनी प्रॉब्लम में है ना, तो उसने क्या किया
उसने क्रेडिट ले लिया भाई, जो एक आदमी होता है जिसको उधार नहीं मिल रहा कहीं से, वो कह देता है भाई 50%, 60%, जितने पे मुझे मर्जी दे दो, वो सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ जाएगी। या ऐसी अनरिजनेबल टर्म्स के लिए एग्री कर लेता है, चाहे फाइनेंशियल डेट हो या ऑपरेशनल डेट हो। द बोर्ड में स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच ए ट्रांजेक्शन शैल बी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो उसके लिए रेगुलेशंस हैं। For the purpose of this section, it is clarified that any debt extended by any person providing financial services which is in compliance with any law shall in no event be considered as an extortionate credit transaction। तो ये extortionate credit transaction में नहीं आएगी। कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी अगर 50% इंटरेस्ट ले रही है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई बार नहीं है एनबीएफसी पे कि कितने परसेंट लेना है। हालांकि उन्होंने कुछ कंसिडरेशंस रखी हैं उसके लिए, लेकिन वो एडवाइजरी कैपेसिटी में, मतलब इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर। 50%, 60% फाइनेंस जो एनबीएफसी है जितना मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, देयर इज नो बार। ठीक है। इसी तरह से जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, नॉर्मली 3% पर मंथ चार्ज करते हैं, 36%, कोई बार नहीं है, वो एक्सटॉर्शनेट में नहीं आएगा। ठीक है। एक्सटॉर्शनेट में क्या आएगा, ये हमारा रेगुलेशन नंबर 11 में दे रखा है। क्या रेगुलेशन नंबर 11 क्या बोलता है? ये रेगुलेशन बोलता है रिक्वायर द कॉर्पोरेट डेटर टू मेक एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट प्रोवाइडेड। आपने जो क्रेडिट प्रोवाइड किया उसके लिए एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट्स आप दे रहे हो। आप कह रहे हो जी मुझे आज 10 रुपए दे दो, मैं कल आपको 20 रुपए दे दूं, एग्जॉर्बिटेंट हो गया। एंड आर अनकॉन्स्टिनेबल अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनरीजनेबल है। ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। हम्म, 50। ठीक है। 51, 51 क्या बोलता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें जो भी होगा इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, या सेट असाइड द होल और पार्ट ऑफ द डेट क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन टू मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। मॉडिफाई भी कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि भाई आपने एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट्स किए हैं तो उसको मॉडिफाई कर दो टर्म्स एंड कंडीशंस को। आप 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, 50% के बजाय 18% कर लो, ये भी हो सकता है। रिक्वायर एनी पर्सन हु इज और वाज ए पार्टी टू द ट्रांजेक्शन टू repay an amount received by such person or require any security interest that was created as part of the extortionate credit transaction to be relinquished in favor of the liquidator or the RP as the case may be। ठीक है। तो ये एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नाउ 52, 52 क्या बोलता है? 50 जब हम 33 में स्टार्ट किए थे लिक्विडेशन, तो उसमें क्या लिखा था? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। मतलब ये कि ड्यूरिंग लिक्विडेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर इज एट लिबर्टी, वो चाहे अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलिंक्विश करे या एक्सरसाइज करे। हमने कॉलम 8A देख लिया। कॉलम 8A फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर व्हेन इज फाइलिंग हिज क्लेम, तो उसी में वो लिख देता है कि वेदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश्ड, यस और नो, कॉलम नंबर 8A, है ना। लास्ट टाइम वी हैड सीन। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला, रिलिंक्विश इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिलिंक्विश कर देगा या रियलाइज कर देगा। रिलिंक्विश में तो and receive proceeds from the sale of assets by the liquidator in the manner specified in section 53। अगर रिलिंक्विश करेगा तो लिक्विडेटर ही देगा। अगर रियलाइज करेगा तो रियलाइजेशन में तो मॉर्गेज उसके पास ही है ऑलरेडी, है ना। तो उस केस में फिर कुछ रेगुलेशंस हैं। वो रेगुलेशन क्या कहते हैं कि भाई पहले तो उसको 30 डेज के अंदर इंटीमेशन देनी है। वो इंटीमेशन तो उसको क्लेम फॉर्म में ही मिल गई, है ना। और अगर मान लो उसने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब रिलिंक्विश्ड है क्लेम, है ना। Where the secured creditor realizes security interest under clause B of subsection 1, he shall inform the liquidator of such security interest and identify the asset subject to such security interest to be realized। सबसे पहले क्या करेगा? इसको इन्फॉर्म करेगा और आइडेंटिफाई करेगा एसेट को। भाई कंपनी में तो बहुत सारे एसेट हैं, है ना। तो ये अपना एसेट आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कौन सा एसेट मुझे रियलाइज करना है, क्योंकि एसेट की कस्टडी तो सीडी के पास है ना। वो तो सिर्फ मॉर्गेज है, उसके पास तो पेपर है ना। सपोज प्लांट एंड मशीनरी है, अगर कोई हाइपोथेकेटेड है, कोई मॉर्गेज डीड की हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी तो सीडी के पास है ना।
तो वो अपना एसेट आइडेंटिफाई करेगा, भाई ये जनरेटर जो है मुझसे सिक्योरिटी है, या ये प्लांट की मेरे पास है, या इस होटल की सिक्योरिटी मेरे पास है, इस तरह से। Before any security interest is realized by the secured creditor under this section, the liquidator shall verify such interest. ये भी लिक्विडेटर भी उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वेरीफाई करेगा, एंड परमिट द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रियलाइज ओनली सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच मे बी प्रूव्ड आइदर बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट मेंटेन्ड बाय एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। भाई या तो वो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगा ना, या तो सरसई में रजिस्टर्ड होगा, या एमसीए में रजिस्टर्ड होगा, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रजिस्टर्ड होगा, और बाय सच अदर मींस एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसके रेगुलेशंस भी पढ़ लेंगे। अब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, अब वो जो मर्जी करे, एनफोर्स कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, सेटल कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज और डील विद द सिक्योर्ड एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद सच लॉ as applicable to the security interest being realized and to the secured creditor, and apply the proceeds to recover the debts due to it। ठीक है, if in the course of realizing a secured asset, अब ये रियलाइज करना चाहता है, लेकिन secured he faces resistance from the corporate debtor or any person connected therewith। मान लीजिए होटल की सिक्योरिटी इसके पास है, अब ये गया, वहां एम्प्लॉयज बोलते हैं भाई तुम कैसे रियलाइज कर लोगे, हम तो तुम्हें नहीं देंगे इसकी कस्टडी। तो वो क्या करेगा, वो फिर एप्लीकेशन लगाएगा, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, द सिक्योर्ड क्रेडिटर may make an application to the adjudicating authority to facilitate the secured creditor to realize such security interest in accordance with law for the time being in force। The adjudicating authority, on receipt of an application from a secured creditor, may pass such order as may be necessary to permit a secured creditor to realize security interest in accordance with law for the time being in force, where the enforcement of the security interest yields an amount by way of proceeds which is in excess of the debts। ठीक है, मान लो उसको ज्यादा मिल गया डेट से, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज थी, उसका डेट था 100 करोड़ का, प्रॉपर्टी बिक गई 200 करोड़ की, क्या वो सारे रख लेगा, नहीं, वो वापस दे देगा लिक्विडेटर को। अकाउंट टू द लिक्विडेटर फॉर सच सरप्लस एंड टेंडर टू द लिक्विडेटर एनी सरप्लस फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ सच सिक्योर्ड एसेट्स। ठीक, मतलब दोनों बातें हैं, एक तो पूरा हिसाब देगा अकाउंट, ठीक है, अकाउंट टू द लिक्विडेटर फॉर सच सरप्लस, कि भाई देखो मेरा डेट इतने का था, मुझे इतने का रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और जो भी उसको सरप्लस फंड्स मिले हैं वो लिक्विडेटर को दे देगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे कि दोनों में इसका क्या, इसके पीछे बेसिक रीजनिंग क्या है। ये जो दो लाइनें लिखी, एक भी लाइन लिख सकते थे, इन्होंने दो क्यों लिखी। पहला तो ये भाई हिसाब दे देगा, और फिर अगर सरप्लस फंड्स मिल गए तो वो लिक्विडेटर को दे देगा। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका। दो लाइनें क्यों लिखी, सीधा सीधा लिख देते भाई जो उसको सरप्लस दे देगा, खत्म बात। Are they referring to the record, sir? एक्चुअली समटाइम्स प्रॉपर्टी माइट बी सोल्ड बट कैश मे नॉट बी रिसीव्ड। कई बार ऐसा होता ना, प्रॉपर्टी तो सेल हो गई बट पैसा तो अभी नहीं मिला मान लीजिए, तो उस केस में कह रहा है भाई जितना पैसा मिलेगा उतना ही उसको देना है। अगर पैसा नहीं मिला तो लिक्विडेटर अपनी जेब से तो देगा नहीं ना उसको, पहले तो वो हिसाब दे देगा, भाई देखो ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी इतने की बिकी, ठीक है, और जितना पैसा मिलेगा पहले वो पैसा अपने पास रखेगा और जो सरप्लस है वो उसको दे देगा लिक्विडेटर। देयर कुड बी ए डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट विच द प्रॉपर्टी सोल्ड and the amount realized. The amount of insolvency resolution process cost due from secured creditor who realize their security interests in the manner provided in this section shall be deducted from the proceeds of any realization by such secured creditors, and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation estate। क्या मतलब, वो ये कह रहा है कि कुछ लोगों ने अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट खुद रियलाइज कर लिया,
नाउ लेट अस टेक अ केस, देयर इज ए कंपनी जिसमें एक ही एसेट है और वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहा है कि आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही रियलाइज कर लूंगा। ठीक है, 500 करोड़ का उसका लोन है। ठीक है, 500 करोड़ का ही रियलाइजेशन हो गया। क्या वो 500 का 500 करोड़ अपने पास रख लेगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेगा बाय बाय, मैंने 500 करोड़ लेना था, मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हो गई, मैंने ले लिया, खत्म बात। क्या वो कर सकता है ऐसा? द आंसर इज नो। नो। क्यों? ये गुरुद्वारे थोड़ी जाएगा लिक्विडेटर जो बैठा हुआ है, भाई इसको भी तो कुछ चाहिए। मान लीजिए ऐसे सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसे ही करने लगे, सब अपने अपने पैसे लेके जाने लगे, तो ये क्या करेगा बेचारा लिक्विडेटर? इसको भी तो फीस देनी है ना। तो वो ये कह रहा है कि अगर जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है ड्यू फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु रियलाइज देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड shall be deducted from the proceeds of any realization by such secured creditors and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation estate। मतलब जो कोई अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट ड्यू थी फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, अब आप कहोगे यहां पर वर्ड लिक्विडेशन कॉस्ट तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलेशंस में जाओगे तो रेगुलेशन में हो सकता है कुछ डिफरेंट वर्डिंग लिखी हो। यहां क्या लिखा है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। शायद इसके पीछे रीजनिंग ये है कि भाई लिक्विडेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ वो तो इमीडिएटली रियलाइज कर सकता है ना। भाई सीआईआरपी में देयर इज ए बार, सीआईआरपी में सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन नॉट टेक एनी एक्शन अंडर सरफेसी, लेकिन लिक्विडेशन में तो कोई बार नहीं है ना। तो शायद इसीलिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट लिखा होगा, लेकिन रेगुलेशंस में और थोड़ा सा देख लेंगे इस बार। ठीक है, वेयर द प्रोसीड्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर नॉट एडिक्वेट। अब मान लीजिए उसका डेट पूरा ही नहीं हुआ, 500 करोड़ का डेट था, प्रॉपर्टी बिकी 200 की, तो अब 300 के लिए क्या करेंगे? क्या बोलेंगे अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोबारा लाइन में लग जाएगा 53 में। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी लोअर हो गई उसकी, अब वो क्लॉज ई में आ गया, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53। अभी पहले वो क्लॉज बी में था, अब वो क्लॉज ई में आ गया। ठीक है, अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ड्यूज। तो गवर्नमेंट ड्यूज जो है उसका, और ये जो अपना सिक्योर्ड क्रेडिटर है हु हैव नॉट रिलिक्विश्ड देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो दोनों का पेरी पैसू चार्ज इसमें होता है। ये हो गया हमारा 52, और अब हम देख लेते हैं 53। 53 देख करके उसके बाद में हम 52 के सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला को देख लेंगे, या पहले 52 को ही क्लियर कर लेते हैं, 53 बाद में करेंगे। 52 में क्या बोलता है? 52 में क्या क्या रेगुलेशंस है रियलाइजेशन के लिए? रेगुलेशन 37 है, 37A है, 39 है और 40 है। ठीक है, तो हम रेगुलेशन नंबर 37 पर चलते हैं। ये रेगुलेशन नंबर 37 है, क्या बोलता है? रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। कैसे ये रियलाइज करेगा? सबसे पहले तो ये बताएगा कि भाई मैं कितने प्राइस पर उसको रियलाइज करना चाहता हूं। ठीक है, ए सिक्योर्ड क्रेडिटर हु सीक्स टू रियलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 52 शैल इंटीमेट द लिक्विडेटर ऑफ द प्राइस एट विच ही प्रपोजेस टू रियलाइज इट्स सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, अब मान लीजिए इसको लगता है कि भाई ये ज्यादा सयाना बन रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो बोलता है भाई जितना प्राइस तुम बता रहे हो उससे ज्यादा का बायर तो मेरे पास है ना। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर कहेगा भाई कोई बात नहीं, मैं उसको बेच दूंगा, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है ना। द लिक्विडेटर शैल इन्फॉर्म द सिक्योर्ड क्रेडिटर विद इन 21 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द इंटीमेशन अंडर सब रेगुलेशन 1। लेकिन टाइम पीरियड दे दिया भाई, लिक्विडेटर के पास भी 21 डेज में ये बताएगा कि क्या उसके पास कोई बायर है। इफ ए पर्सन इज विलिंग टू बाय द सिक्योर्ड एसेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, ऐसा नहीं कि वो 6 महीने साल बाद बेचेगा, रेडी बायर होना चाहिए। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन अंडर सब रेगुलेशन 1 एट ए प्राइस हायर देन द प्राइस इंटीमेटेड अंडर सब रेगुलेशन 1। सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला मेरे पास 100 करोड़ का बायर है, लिक्विडेटर ने 21 डेज में बोल दिया उसको
कि भैया मेरे पास 120 करोड़ का बायर है, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर को उसको ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द लिक्विडेटर इन्फॉर्म्स द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ ए पर्सन willing to buy the secured asset under sub regulation 2, the secured creditor shall sell the asset to such person, फिर उसी को बेचना पड़ेगा, है ना, उसको तो अपने पैसे से मतलब है ना, भाई तुम इसको बेच दो। इफ द लिक्विडेटर डज नॉट इन्फॉर्म द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बता दिया कि भाई मैं 100 करोड़ में बेचना चाह रहा हूं, लिक्विडेटर चुपचाप रहा, उसने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, या जो बंदा आइडेंटिफाई किया था वो आया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो अपने एसेट को रियलाइज कर सकता है जैसे वो चाहे, लेकिन एट लीस्ट एट द प्राइस इंटीमेटेड अंडर सब रेगुलेशन 1, जो उसने पहले प्राइस बताया था कम से कम उतना तो डिडक्ट हो जाएगा, चाहे अल्टीमेटली वो कम पर सेल हो। जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर ने पहले बोला भाई मेरे पास 100 करोड़ का बायर है, ठीक है, लिक्विडेटर ने बोल दिया मेरे पास 120 का है और वो खरीदने को तैयार है, बाद में वो बंदा आया ही नहीं, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको अपने आप बेच सकता है, लेकिन जितने अल्टीमेटली हो सकता है वो 90 करोड़ में बिके, लेकिन जो प्राइस उसने पहले बोल दिया था उतना लेस हो जाएगा, कम से कम उतने प्राइस पर उसको बेचना पड़ेगा, बेचने का मतलब वही है कि उतना लेस हो जाएगा प्राइस, है ना, ये है मतलब। वेयर द सिक्योर्ड एसेट इज रियलाइज्ड अंडर सब रेगुलेशन 3, अब एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जो भाई जो भी एसेट आप सेल करते हो ये ऑक्शन वगैरह के थ्रू सेल होते हैं, है ना, अब ऑक्शन में बहुत सारे क्या होता है, आपने ऑक्शनियर अपॉइंट किया, आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया, देयर आर सम एसोसिएटेड कॉस्ट्स, तो वो कॉस्ट कौन बियर करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अगर सिक्योर्ड एसेट इज रियलाइज्ड अंडर सब रेगुलेशन 3, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बियर द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायर, इसके लिए आप ये ध्यान में रख लीजिए कि जिसने आइडेंटिफाई किया है बायर को, दूसरा आदमी उसकी कॉस्ट बियर करेगा, ठीक है। अगर लिक्विडेटर ने आइडेंटिफाई किया है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर कॉस्ट बियर करेगा, और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने आइडेंटिफाई किया है तो लिक्विडेटर बियर करेगा, लिक्विडेटर बियर मतलब लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है, इतना याद रहेगा। ओपोजिट है, ठीक है, क्यों ओपोजिट है, भाई काम तो उसी का था ना, तो लेकिन दूसरे बंदे ने ढूंढा, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बियर द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। Where the secured asset is realized under sub-regulation 4, the liquidator shall bear the cost incurred to identify the buyer. The provisions of this regulation shall not apply अगर सरफेसी में एक्शन हो रहा है तो, या आरडीबी में एक्शन हो रहा है तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें तो क्या होता है कि वो अपने आप पब्लिक ऑक्शन करेगा या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचेगा, सरफेसी या आरडीबी वो भी हमारे कोर्स में है, तो जब हम वो वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा, मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूं, ठीक है। ए सिक्योर्ड क्रेडिटर शेल नॉट सेल और ट्रांसफर एन एसेट विच इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू एनी पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल, मतलब जो 29A में अगर इनएलिजिबल है तो उसको नहीं बेच सकता। अब एनआरआर क्या है, एनआरआर भी एक कॉन्सेप्ट है 37 है, और इस पर एक केस लॉ भी है हमारे पास, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स, मैंने जो केस लॉ वाली आपको पीपीटी शेयर की है ना, मेरे ख्याल पीपीटी से शेयर कर दी है मैंने ग्रुप में, है ना, न्यू केस लॉस, तो उसमें मैंने ना कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो उस कीवर्ड से आप उस पर जा सकते हो जो भी आप केस लॉ ढूंढना चाहो। असाइनमेंट ऑफ नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स, अब कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भैया आप ऑक्शन भी कर लिया, रियलाइजेशन ही नहीं हो रही, कोई बायर ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर में असाइन और ट्रांसफर ए नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमिटी, उसके लिए कंसल्ट करेगा किसको, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी को, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाएगा उसका इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 31 ने फॉर ए कंसिडरेशन टू एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान, तो ये क्या कर सकता है, उसको असाइन कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है फॉर द, जैसे ट्रांसफर या असाइन का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई सनडी डेटर है, अब सनडी डेटर रियलाइज नहीं हो रहे, है ना,
तो कोई एआरसी हो सकती है, वो कह दे भैया मेरे को दे दो, मैं रियलाइज करा लूंगा, मेरे को असाइन कर दो या मेरे को ट्रांसफर कर दो। ठीक है। For the purpose of this sub-regulation, not readily realizable asset means any asset included in the liquidation state। क्योंकि liquidation state में तो सारे जो भी आपके बैलेंस शीट में है या आपकी कस्टडी या कंट्रोल में है, वो सारे एसेट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर जो भी ऑप्शंस में नहीं बिक सके, मान लीजिए ऑक्शन की आपने या प्राइवेट सेल करने की कोशिश की, नहीं बिका, एंड इंक्लूड्स कंटिजेंट और डिस्प्यूटेड एसेट्स, कोई आपका कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एक्शनेबल क्लेम्स हैं, एंड एसेट्स अंडरलाइंग प्रोसीडिंग्स फॉर प्रेफरेंशियल अंडरवैल्यूड एक्सटॉर्शनेट और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस एंड सेक्शन 66 ऑफ द कोड, तो ये नॉट रेडीली रियलाइजेबल एसेट में आते हैं। ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, असाइनमेंट या ट्रांसफर करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। क्योंकि ये जो एसेट्स हैं, आप ये बात समझो कि ये कोई नॉर्मल प्राइस पे तो बिकेंगे नहीं, है ना, ये तो सस्ते बिकेंगे, क्योंकि आपके बस का तो है नहीं रियलाइज करना, तो दूसरा भी उसको फिर डिस्काउंटेड प्राइस पर लेगा ना। ये बस जस्ट मैं जरा वो लगा दूंगा, इस पर लगाया नहीं चार्जर, एक मिनट। हम्म, हाँ ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स, अब आपने बिका भी नहीं और आपने असाइन या ट्रांसफर भी नहीं किया, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स। द लिक्विडेटर मे with the permission of the adjudicating authority distribute amongst the stakeholders an asset that could not be sold, assigned or transferred। ना वो बेच सकते ना उसको कोई लेने को तैयार। पुरानी कारें हैं, पुराने कंप्यूटर हैं, पुराने फ्लैट्स हैं, है ना, वो ऐसी जगह पर है कि रिमोट लोकेशन में जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हमें ही दे दो, है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा ऑफ अनसोल्ड एसेट्स। ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको परमिशन लेनी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। अब इसमें पूछ सकता है वो, असाइनमेंट के लिए भी क्या परमिशन लेनी है, असाइनमेंट में ऐसी कोई परमिशन नहीं है। असाइनमेंट में आपको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखना है और स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी से कंसल्ट करके चलना है। ठीक है। लेकिन अगर कोई अनसोल्ड एसेट्स है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी है फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। चलिए, और एप्लीकेशन में क्या होगा, दे विल आइडेंटिफाई द एसेट, वो बोलेगा जी देखिए मिलॉर्ड, पुराने कंप्यूटर हैं, पुरानी कारें हैं, है ना, कोई हमने ऑक्शन भी कोशिश कोशिश की, प्राइवेट सेल भी, कोई इसको एआरसी भी लेने को राजी नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज के ड्यूज भी हैं और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिशन दे सकती है। ठीक है। एसेट आइडेंटिफाई करेंगे, एक वैल्यू रखेंगे उसकी, डिटेल द एफर्ट्स मेड टू सेल द एसेट इफ एनी, एंड प्रोवाइड रीजंस फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। रिकवरी ऑफ मनी ड्यू। ठीक है। The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate debtor in a time bound manner for maximization of value। उसके बाद हमारा ये है liquidator to realize uncalled capital or unpaid capital contribution। The liquidator shall realize any amount due from any contributed to the corporate debtor। मतलब ये है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो किसी कंपनी के शेयर्स, तो आप कहते हो भाई मैं इतने पैसे दे दूंगा, हो सकता है अभी आपसे रिकवर ना किए हों, 100 रुपए का शेयर था आपने 50 रुपए दिए, तो लिक्विडेटर भी उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है। द लिक्विडेटर शैल रियलाइज एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी कंट्रीब्यूटरी टू द कॉर्पोरेट डेटर नॉट विथ स्टैंडिंग एनी चार्ज और एनकम्बरेंस ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब कई बार क्या होता है, क्योंकि आपका राइट है वो पैसा कलेक्ट करना, सपोज आपकी इशूड कैपिटल है 100 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 50 करोड़। ठीक है। तो 50 करोड़ तो आप कभी भी कलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इसकी सिक्योरिटी पर भी पैसा ले लेती है मार्केट से। मान लो 50 करोड़ के अगेंस्ट में आपने 40 करोड़ ले लिया, वो एनकम्बरेंस हो गया ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल। तो चाहे आपने कोई चार्ज क्रिएट किया हो या एनकम्बरेंस हो, लिक्विडेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल एंड रियलाइज द अनकॉल्ड कैपिटल और एरियर्स कलेक्ट करेगा।
लेकिन ये है कि ही शैल होल्ड ऑल मनी सब्जेक्ट टू द राइट्स इफ एनी ऑफ द होल्डर ऑफ एनी सच चार्ज और इनकम। ठीक है, आपने, आपकी कंपनी में इशूड कैपिटल 100 करोड़ थी, आपने 50 पहले रियलाइज कर लिया, 50 का जो राइट है आपका टू कलेक्ट दिस मनी, उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया, आपने एक चार्ज क्रिएट करके मार्केट से पैसा उठा लिया 40 करोड़। तो अब आपने रियलाइज करी मनी, जो भी पैसा आप रियलाइज करोगे उसमें से उतनी मनी जो आपने ली है, जिसके पास चार्ज या इनकम बैलेंस है, उसके लिए होल्ड करोगे, सिंपल बात है। ठीक है, नो डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू ए कंट्रीब्यूटरी अनलेस ही मेक्स हिज कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या, मतलब ये है कि 100 रुपए का शेयर था, 50 पहले ही हो चुके थे, अब आप 50 रुपए के लिए उसको कह रहे हो भाई दे दो, वो कहेगा पागल है, कंपनी लिक्विडेशन में है, मैं क्यों दे दूं पैसे। वो कह रहा है अगर आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं लिक्विडेशन में। ठीक है, नो डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू ए कंट्रीब्यूटरी अनलेस ही मेक्स हिज कंट्रीब्यूशन टू द अनकॉल्ड और अनपेड कैपिटल एज रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट रिटर्न। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे तो कोई भी नहीं देगा, कौन है जो दे देगा। इसका जवाब कहां लिखा हुआ है, इसका जवाब आपको सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन है ये। अब आप कहोगे कि भैया ऐसे तो कॉल मनी पे कोई भी पैसे नहीं देगा, तो ये बात कहां लिखी है, कहीं लिखी होगी ना। ये बात आपको लिखी गई है सेक्शन 33 सब सेक्शन एच के अंदर, 35 1 एच। क्या लिखता है 35 1 एच, टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज्ड कंट्रीब्यूटरी। किसी की डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम भी आ सकता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, and to do in his official name any other act necessary for obtaining payment of any money due and payable from a contributory or his estate, which cannot be ordinarily done in the name of the corporate debtor. And in all such cases, the money due and payable shall, for the purpose of enabling the liquidator to take out the letter of administration or recover the money, be deemed to be due to the liquidator himself. ठीक है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं देगा पैसे। तो ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निकाल सकता है, मतलब एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर हो जाएंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो जितना आप ध्यान से पढ़ते जाओगे ना, उतना उतना और आप गहराई में चलते जाओगे इसमें। तो ये हो गया हमारा 40। चलिए, ये भी हो गया। अब टाइम कितना हो गया हमारे पास, 12:30। अभी तो टाइम है अपने पास, है ना, 1 बजे तक कर सकते हैं हम, क्यों जी, हाँ जी सर। है ना, हाँ ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना 53 पर। ठीक है, तो 52 तक तो समझ में आ गया ना। अभी तक जो मैंने बताया उतना तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं है जी, है हितेश जी। Yes, sir. Understood, sir. We need to check once again, sir. Understood, sir. हाँ हाँ, चलिए, भाई नहीं भी आया तो मैं क्या कर लूंगा। लेकिन मैं सर सर सर, एक बार रिकॉर्डिंग, सर एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग और सुन लेंगे। एक बार हाँ, में नहीं तो 2 बार में आ जाएगा, 3 मैं बार में आ जाएगा। मैं देखो, मैं तो पूरी जान लगाता हूँ अपनी तरफ से, और कोई सर पूरी। एग्जाम में आएगा ना तो आपको बोलते हुए दिखाई दे जाओगे। हाँ, ये बात तो है, हाँ अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हाँ हाँ आपका लेक्चर ऐसा रहेगा, आप सामने ये बात बोल रहे हो। हाँ, ये कई स्टूडेंट ने मुझे कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ऐसे जी आपकी आवाज ये हमारे कानों में गूंजती रहती है, क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं। 53, 53 क्या बोलता है, 53 बोलता है कि हलवा मिलेगा कैसे, बटेगा कैसे। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बजट का हुआ सर।
हाँ बजट काल हुआ जिसको लेके राहुल गांधी परेशान रहता है। यार वो बढ़ रहा था, इनको नहीं मिला। 53 बोलता है notwithstanding anything to the contrary contained in any law enacted by the parliament or any state legislature, the proceeds from the sale of the liquidation estate shall be distributed in the following order of priority and within such period and in such manner as may be specified. चलो 53 हम पढ़ें, इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपकी लिक्विडेशन एस्टेट जो बनी वो बनी 20 करोड़, ठीक है, और लिक्विडेशन कॉस्ट आपकी आ रही है 25 करोड़। तो आप क्या करोगे? लिक्विडेशन कॉस्ट 25 करोड़ है, और क्योंकि लिक्विडेशन कॉस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में लिक्विडेशन कॉस्ट का एस्टिमेट दे देगा ये, ठीक है, बता देगा ना कि लिक्विडेशन कॉस्ट कितनी आएगी। लिक्विडेशन एस्टेट हमारी बनी 20 और लिक्विडेशन कॉस्ट है 25, तो अब क्या करोगे? सर कंट्रीब्यूशन मंगवाना पड़ेगा ना। हाँ, रेगुलेशन हमने 2A पढ़ा था। रेगुलेशन 2A क्या बोलता था कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनसे उनके डेट के रेशियो में हम कंट्रीब्यूशन मंगा लेंगे और वो विद इन 7 days ऑफ द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट उनको एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कराना है, ठीक है। तो शुरू में ही कर देते हैं भाई, ऐसा नहीं पंडित को घर पे बुला लिया। ये लिक्विडेटर कौन है? पंडित ही तो है। पंडित को घर पे बुला लिया, उसको देने के लिए पैसे नहीं है। भाई तुम्हारे को खुद को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, पहले जो पंडित बुलाया है उसकी दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। उसकी दक्षिणा के लिए पैसे कम है तो पहले आपस में मिला लो। जो मोटे मोटे रिश्तेदार हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में कंट्रीब्यूट करके कम से कम ये पंडित जी को तो सही तरह से विदा करना है, ठीक है। सबसे पहला, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल। अब मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने से पहले ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कब होगा। ये कब शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन? इसका भी तो कोई पीरियड होगा ना। ये कब शुरू होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ जी, बस क्या लिक्विडेशन शुरू करते ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दो? क्या करोगे बताओ? सर ये तो पैरेलल चलेगा ना साथ में ही, हैं? जैसे जैसे कलेक्शन आता जाता है। नहीं, कलेक्शन तो ठीक है, पर मेरा मतलब क्या, आपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी फाइल नहीं किया तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हो? सर रिपोर्ट तो फाइल करना पड़ता है आफ्टर 180 days सर। भैया ऐसा है, तुक्के मत मारो। रेगुलेशन 42 है इसके लिए। रेगुलेशन 42 डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि हलवा बंटना शुरू कब करना है, वो भी तो जरूरी है ना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 53। एक बार रेगुलेशन 42 पे चलता हूं, क्या कहता है 42? फोर्टी टू कहता है बटाई कब शुरू करनी है। ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 53, द लिक्विडेटर शेल नॉट कमेंस डिस्ट्रीब्यूशन। शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक तो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स फाइल करनी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और एसेट मेमोरेंडम फाइल करना है, ठीक है। द लिक्विडेटर शेल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फ्रॉम, और उसके बाद में अब हमने ये भी पढ़ा कि रियलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम फीस का प्रोविजन पढ़ रहे थे तो फीस में अलग अलग प्रोविजंस थे। पहला तो सीआईआरपी ने डिसाइड किया होगा, वो फीस दे देंगे। सीआईआरपी ने डिसाइड किया तो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी डिसाइड कर लेगी। पहले 90 डेज जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए, उसके लिए कौन सी फीस होगी? जो एज आरपी ले रहा था। ये सब प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगा? विद इन 90 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट टू द स्टेक, ठीक है। तो जब मिल गया पैसा, उसके 90 days में डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है।
The insolvency resolution process cost, if any, and the liquidation cost shall be deducted before such distribution is made. तो हमें जो सेक्शन 53 है उसको रेगुलेशन 42 के साथ मिला करके पढ़ना है। ये अभी पीरियड हो गया 90 डेज, पहले ये जो पीरियड था ये था 6 मंथ्स, ठीक है, अब हो गया 90 डेज, ध्यान रखना है इसका। और जब तक आपने एसेट मेमोरेंडम फाइल नहीं किया और लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स फाइल नहीं किया तब तक आप ये नहीं कर सकते। और एसेट मेमोरेंडम कितने दिन में फाइल करना है ये भी बता दीजिए साथ के साथ। एसेट मेमोरेंडम कितने दिन में फाइल करना है? कितना खुश हुए सब भाई इतनी देर में भी पहुंच गए। और फिर मैंने कहा और आ रही थी छोड़ चल जा रही थी। हाँ जी, एसेट मेमोरेंडम कितने दिन में फाइल करना है? ठीक है। तो मैंने उसको ये दिया तो उसको जाके ये मिला था स्टार्ट दिया। मैंने कहा अगले साल अच्छे से ऐसी गजरे लगा के सुरेंद्र राय यादव जी, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। एसेट मेमोरेंडम रेगुलेशन 34 में लिखा है, क्या लिखा है? इसमें दो तरह के केसेस दिए। सबसे पहले आपका वैल्यूएशन सीआईआरपी में हो चुका है तो आपको एसेट मेमोरेंडम फाइल करना है कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन तो करवाना नहीं आपने। और अगर आपने 35(2) में कवर्ड हो, भाई वैल्यूएशन पुराना हो गया या स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी कह रही है नया वैल्यूएशन कराओ या लिक्विडेटर को लगता है कि नया वैल्यूएशन होना चाहिए, तो आपको एसेट मेमोरेंडम फाइल करना है विद इन 75 डेज। तो दो पीरियड है, 30 डेज और 75 डेज। अगर वैल्यूएशन नहीं कराने की जरूरत, पुराना ही काम में आ जाएगा तो 30 डेज में एसेट मेमोरेंडम बनाना है, अदरवाइज 75 डेज में बनाना है। और एसेट मेमोरेंडम क्या है? एसेट मेमोरेंडम ऐसा ही है जैसे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनता है, वो बनता है सीआईआरपी में, ये बनता है लिक्विडेशन में, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। तो जब हम 53 पढ़ेंगे तो 53 के साथ में हमें पढ़ लेना है कि 53 का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कब होगा, ये जरूरी है। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन, अगर ये नहीं है तो हम रेगुलेशन 2A पर चले जाएंगे, है ना। रेगुलेशन 2A क्या बोलता है? भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलेंगे तुम कंट्रीब्यूट करो 7 दिन के अंदर विद इन एस्क्रो अकाउंट जमा करो। फॉलोइंग डेट्स विच शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग: वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से पहले के 24 मंथ्स के ड्यूज। अच्छा, मान लीजिए वर्कर्स की कोई ग्रेच्युटी भी है, पीएफ भी है, तो क्या वो यहां पर आएगा? वो नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, वेरी करेक्ट, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट, उसको पहले ही निकाल के अलग कर लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर जो भी ड्यूज है अदर देन जो पीएफ ग्रेच्युटी वगैरह वो ड्यूज आते हैं, बेसिकली वेजेस, ठीक। वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट and debts owed to a secured creditor in the event such secured creditor has relinquished the security in the manner set out in section 52। अगर उसने रिलिंक्विश कर लिया तो उसको प्रेफरेंस है, वो यहां पर आ जाएगा 53(1)(b) के अंदर, ठीक है। और इन दोनों का इक्वल रैंक इक्वली। सपोज लिक्विडेशन एस्टेट आपकी 100 करोड़ है, आपके जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है मान लीजिए वो 50 करोड़ है, तो आपका 50 बच गया। अब 50 में मान लीजिए वर्कर्स के ड्यूज हैं 40 करोड़ के, ठीक है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनके ड्यूज हैं 60 करोड़। 100 करोड़ आपने देना है और 50 करोड़ आपके पास है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप इनको हाफ हाफ दे दोगे, 40 वाले को 20 दे दोगे और 60 वाले को 30 दे दोगे, ठीक है, इक्वल रैंक, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन। वर्कमैन ऊपर वाले में आ गए, और अगर कोई वेजेस हैं और कोई अनपेड ड्यूज है ओड टू एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन, तो उस केस में क्या होगा? उनके लिए 12 मंथ्स का पीरियड। मान लीजिए वर्कर के ड्यूज 6 मंथ्स के हैं, 36 मंथ्स के,
ठीक है। वर्कर के ड्यूज 36 मंथ्स के, 24 मंथ्स का तो आपने ऊपर दे दिया, बाकी का 12 मंथ्स कहां दोगे आप? ये पार्ट सी में जाएगा या पार्ट एफ में जाएगा? वो पार्ट एफ में जाएगा। यहां पर बेसिकली एम्प्लॉयज के ड्यूज आते हैं अदर देन वर्कमैन। मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज को दे दो 12 महीने का और वर्कमैन को दे दो 24 मंथ्स का। अगर उससे ज्यादा का है तो फिर लास्ट में फिर बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा मिलने दो, लास्ट में उनको मिलेगा एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। ठीक। फाइनेंशियल डेट्स और टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहां पर फाइनेंशियल डेट्स आ गए टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एंड फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली, कौन से? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर डेट्स ओड टू ए सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। भाई उसने अपने आप एनफोर्स कर लिया था, लेकिन उसका कुछ कम रह गया, 100 करोड़ था उसका डेट, अब उसने 80 करोड़ रियलाइज कर लिया, बाकी 20 है, बाकी 20 उसको यहां मिल जाएगा। दोनों का पेरी पैसू चार्ज है। गवर्नमेंट ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट और डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद में रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। अब रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में कौन कौन से आ जाएंगे? पहले वर्कमैन के ड्यूज हैं 24 मंथ्स के बियॉन्ड जो भी है, ठीक है। मान लो 60 मंथ्स के ड्यूज थे तो बाकी 36 मंथ यहां आ जाएगा। एम्प्लॉयज के ड्यूज मान लीजिए 80 मंथ्स के थे तो 12 मंथ्स वहां आ गए और बाकी के जो 68 मंथ्स है वो यहां पर आ जाएंगे। अगर बचेगा तो मिलेगा, मतलब, है ना। इसमें जहां पर भी पैसा खत्म, हलवा खत्म, बस जाओ घर अपने। ऐसा भी हो सकता है कि खाली लिक्विडेशन कॉस्ट ही पूरी हो, बाकी किसी को कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसी ऑर्डर में देना है, इसीलिए उसने 43 में कह दिया ना, अगर कोई इसको डिस्टर्ब करेगा तो वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपने वर्कर को पहले दे दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर से तो प्रेफरेंशियल हो गई, है ना। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। एनी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स between recipients under subsection 1 with equal ranking if disrupting the order of priority under that subsection shall be disregarded by the liquidator। इस पे ऊपर भी हमारे पास एक केस लॉ है जो हमारे सिलेबस में है। वो क्या कहता है कि आपस में कोई आपका कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, जैसे मान लो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम में मान लो 3 है, तो उसमें वो कहता है कि भाई आपस में आपने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ कि भाई पहले मुझे मिलेगा, फिर दूसरा प्रायोरिटी इसकी, तीसरी, तो वो ये कह रहा है कि दैट शैल बी डिसरिगार्डेड। ठीक है। वो उसका केस है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड वाला। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में क्या हुआ कि बैंकर्स ने बोला हमारे को पहले मिलेगा बाद में इसको मिलेगा, तीनों वो तीनों एक ही थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर थे। तो ये यहाँ पर ये सेक्शन हिट होता है। वो ट्रिपल अनिल गोयल वाला केस है, अनिल गोयल लिक्विडेटर ऑफ दिस ये और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। और जो फीस पेएबल है टू द लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम द प्रोसीड्स पेएबल टू ईच क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड द प्रोसीड्स टू द रेलेवेंट रेसिपिएंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर सच डिडक्शन। क्योंकि क्या होता है, इकट्ठा तो पेमेंट होता नहीं, भाई पूरा बना लेता है लिक्विडेटर के, भाई देखो उसके पास लिक्विडेशन स्टेट तो बनी हुई है सेक्शन 36 में, क्लेम्स भी आ चुके हैं, क्लेम्स वेरीफाई भी हो चुके हैं, जो रिजेक्ट होने थे रिजेक्ट भी हो चुके, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी भी बन गई, तो उसको पता है कितने पैसे देने हैं, है ना। चलो एक बात और बता दो, जो लिक्विडेशन में भी क्या कंपनी कैन बी रन एज ए गोइंग कंसर्न? हो सकता है क्या लिक्विडेशन में? ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, इट कैन बी रन एज ए गोइंग कंसर्न? Yes, sir. It can be, sir. वेरी करेक्ट, इट कैन बी। लेकिन क्या उसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत है या नहीं, या विदाउट परमिशन हो जाएगा? Adjudicating authorities, sir. नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। Yes, and SEC. वो कहता है कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी से आपको कंसल्ट करना है, और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी अगर बोलती है ओनली देन इट कैन बी रन एज ए गोइंग कंसर्न। कोई इसका रेगुलेशन नंबर बता सकता है क्या? हाँ जी, रेगुलेशन नंबर। पिछली बार हमने पढ़ा था
चलो रेगुलेशन नंबर आप देख लेना, लेकिन इसमें ये है कि सर 32 है शायद। 32 है। 32 तो सेल ऑफ एसेट्स है, नहीं सेल ऑफ एसेट्स है वो तो। वो सेल एज ए गोइंग कंसर्न वो अलग बात है, सेल एज ए गोइंग कंसर्न की बात नहीं कर रहा। ये देखो आपका रेगुलेशन नंबर है 32A5। रेगुलेशन 32A5। 32A5 क्या बोलता है? 32A5 बोलता है where the liquidator is of the opinion that it is viable to run the corporate debtor as a going concern, he shall consult the consultation committee, and only on its advice he shall run the affairs of the corporate debtor as a going concern to the extent approved। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर 32 है, सब रेगुलेशन 5। ठीक है, ये है। चलिए अब for the purpose of this section, it is hereby clarified that at each stage of the distribution of proceeds in respect of a class of recipients that rank equally, each of the debts will be either paid in full or will be paid in equal proportion within the same class of recipients if the proceeds are insufficient to meet the debts in full. And the term workman dues shall have the same meaning as assigned to it in section 326 of the Companies Act। तो वर्कमैन ड्यूज का क्या मतलब है वो आपको वहां कहां से देखना है? सेक्शन 326 से। ये सेक्शन 326 है हमारा। ठीक है, 54 क्या बोलता है? 54 बोलता है डिसोल्यूशन। क्या हर केस में डिसोल्यूशन होगा या क्लोजर भी हो सकता है? डिसोल्यूशन भाई लिक्विडेशन शुरू हो गया आपका, क्या हर स्टेज हर केस में डिसोल्यूशन होना जरूरी है? द आंसर इज नो। अगर इफ यू आर सेलिंग इट एज ए गोइंग कंसर्न तो फिर तो क्लोजर हो जाएगा ना, क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, where the assets of the corporate debtor have been completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate debtor। इसमें भी एक केस लॉ है। वो केस लॉ क्या कहता है? उसमें एक बंदे ने केस कर दिया, वो कहता जी ऐसा है लिक्विडेशन हो गया तो जरूरी डिसोल्यूशन होगा, तो कोर्ट ने कहा नहीं जरूरी नहीं है, जब व्हेन यू आर सेलिंग इट एज ए गोइंग कंसर्न तो क्लोजर होगा, है ना। वो बोला जी सेक्शन में तो लिखा नहीं है, सेक्शन में नहीं लिखा तो रेगुलेशन में ले आए वो बात। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall on an application filed by the liquidator under subsection 1 order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly। A copy of the order shall within 7 days from the date of such order be forwarded to the authority within which the corporate debtor is registered। ठीक है, अब इसमें दो तीन सवाल पूछ लेता है। पहला पहला तो यह है कि लिक्विडेटर को कब फाइल करनी है एप्लीकेशन, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी। ठीक है, तो वो कहता है शेल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर, ये नहीं लिखा कितने दिन में फाइल करनी है 54(2)। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, और फिर इसके रेगुलेशन नंबर 45 और 46 भी देख लेते हैं। 45 क्या बोलता है? ये है रेगुलेशन नंबर 45। 45 क्या बोलता है? फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन से पहले आपको फाइनल रिपोर्ट देनी है। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज लिक्विडेटेड द लिक्विडेटर शैल मेक एन अकाउंट ऑफ द लिक्विडेशन शोइंग हाउ इट हैज बीन कंडक्टेड एंड हाउ द कॉर्पोरेट डेटर्स एसेट्स हैव बीन लिक्विडेटेड। तो इसको एक अकाउंट बनाना है ऑफ लिक्विडेशन। If the liquidation cost exceeds the estimated liquidation cost provided in the preliminary report, क्योंकि preliminary report में इसने बताया था कि liquidation cost कितनी होगी, अब उस टाइम बताया 2 करोड़, अब हो गई 3 करोड़, तो ये रीजन एक्सप्लेन करेगा उसकी। The liquidator shall submit an application along with the final report and compliance certificate in Form H to the adjudicating authority। तो Form H एक फाइल कर देगा, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो Form H पर ले जाएगा आपको। ठीक है, फॉर क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस। यहां देखो ये दोनों चीजें इंक्लूड कर दी, सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है बात, ये रेगुलेशन में लिखा है। क्लोजर करेगा व्हेन इट इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन हो गया, और बाकी केसेस में डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। संडे है, ऐसा नहीं हो कि घर वाले बोले भैया तुम तो संडे को भी जो है